Good morning everyone and welcome to the class. We are doing first chapter in civics. The chapter is the Indian Constitution, and in the previous class we have started our discussion about the key features of Indian Constitution. And in this regard, we have discussed the first feature of the Indian Constitution, and that is federalism. And as we have discussed about it, that federalism means that there are more than one level of government in the country. The powers of the government is divided between at least two levels of the government, and this distribution of power is done by the constitution. And in our country we have two levels of government according to the original constitution. The first level of government is at the center, and the second level of the government is in the states. And after in the year 1992, some changes were made in the constitution, and now we have third level of government also, that is called local level, and at the local level we can say that the local level government can be divided into two parts: the urban government and urban local government and the rural local government. रूरल में पंचायती राज सिस्टम जो है वो काम करता है ना, जिसमें कि गांव में ग्राम पंचायत होते हैं. इसके बारे में आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना, बट यू मस्ट हैव एन आइडिया, जिसके बारे में अपने क्लास 6 में पढ़ा था, पंचायती राज, है ना. तो गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होते हैं, फिर ब्लॉक्स के लेवल पे पंचायत समितिज होती हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत होती है ना. और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं. तो इस तरह से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड among different levels of government. Now the question is, why our constitution makers adopted federalism, है ना. क्यों हमने फेडरलिज्म को ही अडॉप्ट किया? अगर हम देखें तो फेडरलिज्म का जो ऑपोजिट होता है, जो उसका ऑपोजिट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी सिस्टम. ठीक है. अब यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारे पावर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, सारे पावर्स एक जगह कंसंट्रेटेड होते हैं. ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसंट्रेटेड एट वन प्लेस. जो सेंटर होता है वो ऑल पावरफुल होता है. ठीक है. और सारे पावर एक ही जगह होते हैं. लेकिन जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो आखिर क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस डिवीज़न ऑफ पावर को अडॉप्ट किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट किया? इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा. वी ऑल आर अवेयर दैट इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज़ देयर, है ना. तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़, डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज़ आर लिविंग टुगेदर in our country. So if we want that the demands and the interest of all the communities are taken into consideration, then there is need of more than one level of government. If all the powers are concentrated at the central level, then what would have happened that the central level government will be making law for all the people who are living in country. But the government which is at the center will not be able to understand the need of the different communities of the country. So what happened that our constitution makers adopted this federalism, that there should be division of power. There will be some laws, there will be some subjects on which the center will make laws, the subjects on which there is need of uniformity, है ना. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे
चीज़ें होती हैं जिनमें कि पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। जैसे अगर हम करेंसी को ले लें, करेंसी पूरी कंट्री में एक होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कुछ भी मैटर है तो दैट विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, बोथ आर सेम, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। तो ये क्या है कि अगर जो जिन चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी की नीड होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और जिन चीज़ों में ऐसी यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और ये सब कुछ किसने डिवीज़न किया है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टेट के पास होगा, कौन सा सब्जेक्ट सेंटर के पास होगा? ऑल दिस हैज़ बीन डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। और अगर इस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिगार्डिंग कुछ भी चेंज लाना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट को जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि हम उस पर कानून बनाएं, तो वो ऐसे नहीं उसके पावर्स को ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को नहीं ले सकती, उसके लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना होगा, और इस चेंज को लाने में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट का भी उसकी भी रजामंदी चाहिए होगी, तभी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए ऐसा सिस्टम किया गया ताकि पावर जो है वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड ना हो, क्योंकि जब भी पावर एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाता है तो उस पावर का मिसयूज होना बहुत ही मतलब ईजी हो जाता है। तो अगर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मिसयूज नहीं होता है, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारे कंट्री में हैं उनके जो डिफरेंट इंटरेस्ट है, डिफरेंट डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और फेडरलिज्म के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमने पहले भी बताई है कि जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट द एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स की गवर्नमेंट को भी पावर कहाँ से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है। जैसे सेंटर की गवर्नमेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, वैसे ही स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है उनको भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिल रहा है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है कि फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो एजेंट्स नहीं होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका बराबरी का स्टेटस होता है। ठीक है, उनको भी अथॉरिटी वही देता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसने अथॉरिटी दी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द federalism, and now we will see the next important feature of Indian constitution, and that is parliamentary form of government. ठीक है, ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, अब हम यू हैव रेड अबाउट दिस इन क्लास 7th द स्टोरी ऑफ कांता। योर क्लास 7th book actually starts with the story of Kanta who was standing in line to vote ड्यूरिंग एन इलेक्शन, है ना। कांता जो है वो इलेक्शन में वोट देने के लिए लाइन में खड़ी होती है, और यहीं से आपकी स्टोरी सही स्टार्ट होती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअली आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट universal adult suffrage. Now the first important thing to know is what do we mean by universal adult suffrage. ठीक है, यहाँ पर जो टर्म्स है पहले हम उसको समझेंगे। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? सबके लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो चीज़ सबके पास है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल, है ना, जो सबको मिली हुई है। तो यूनिवर्सल का मतलब हुआ सबके लिए, फॉर ऑल द पीपल, है ना। एडल्ट का मतलब क्या हुआ? एक सर्टेन एज लिमिट जिससे
ऊपर के लोगों को एडल्ट माना जाता है और उससे नीचे के, उस एज लिमिट से जो नीचे लोग होते हैं वो नॉन एडल्ट्स होते हैं। तो ऐसा एडल्ट कहने का मतलब ये होता है कि उनको उनकी एज इतनी हो गई है कि उनके अंदर समझदारी आ गई है, दे हैव द मैच्योरिटी एंड नाउ दे आर एबल टू टेक डिसीजंस। वो इतने बड़े हो चुके हैं, उनका जो मेंटल ग्रोथ है वो इस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकते हैं, उनको हम एडल्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उस समय जो एडल्ट एज माना गया था वो 21 ईयर्स माना गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एज 21 ईयर्स कि 21 ईयर्स के जो लोग हैं वो ऊपर के 21 या 21 से ऊपर के जो हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज एडल्ट, एज एन एडल्ट, और जो 21 से बिलो हैं वो नॉन एडल्ट्स होंगे। तो जो 21 से ऊपर हैं उनका मैच्योरिटी लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो अपने से डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल जहाँ पर सबके लिए जो चीज़ें हैं, एडल्ट का मतलब वो एक सर्टेन एज को फिक्स कर देना जिसके ऊपर के लोगों को एडल्ट माना जाता है। एडल्ट का मतलब दे हैव रीच्ड दैट पॉइंट ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी दैट दे आर एबल टू टेक देयर ओन डिसीजंस। ओके, और उसके बाद जो टर्म है सफरेज, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, सफरेज इज राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का ये मतलब हो रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सभी लोगों के लिए, जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं और जिनका एज 21 या 21 से अबव है, उनको राइट टू वोट दे दिया। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, एडल्ट पीपल को जब राइट टू वोट मिल जाता है, सारे एडल्ट पीपल को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस पे, ना तो जेंडर के बेसिस पे, ना इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, ना लिटरेसी के बेसिस पे, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हुए सिर्फ एज एक फैक्टर होता है और दूसरा सिटीजनशिप। जो हमारे कंट्री के एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट मिलना, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये हमें दे दिया यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। हमारी कंट्री में 26 जनवरी 1950 को जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तब से हम सब लोगों के पास राइट टू वोट है, जो एडल्ट इंडियन सिटीजन्स हैं उनको राइट टू वोट मिला हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें एक और चीज़ आपको समझनी है थोड़ी सी। जैसे ये जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की हम बात कर रहे हैं, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, यूएस को देखें, यूके को देखें, तो इन सारी कंट्रीज़ में इस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी थी, खास करके जो फीमेल थी और प्लस जो पुअर लोग थे। क्योंकि शुरू में जब डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है, जैसे कि फ्रांस में होता है, अमेरिका में होता है, ब्रिटेन में होता है, तो जब डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है, लोगों को राइट टू वोट दिया जाता है, तो सबको नहीं दिया जाता है, सिर्फ मेल मेंबर्स को दिया जाता है, ऐसा होता है। और मेल में भी जो जिनके पास कुछ एक सर्टेन लिमिट फिक्स कर दिया गया कि जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है उन्हीं को राइट टू वोट दिया जाएगा, सबको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो फिर इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई वहाँ पे लड़ी लोगों ने, धीरे धीरे करके मेल मेंबर्स को सबको मिल गया, लेकिन औरतों को नहीं मिला था। बहुत दिनों तक बहुत लंबी लड़ाई जाकर के लड़ी यूएस में, यूके में, फीमेल में, तब जा करके उनको राइट टू वोट मिला। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि जो हमने जो आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, एक्चुअली उसी लड़ाई में हमने राइट टू वोट की भी लड़ाई उसी में हमने लड़ ली है। वो लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि वो लड़ाई डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए भी था। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है राइट टू वोट, बिकॉज अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगा, और इलेक्शन तभी डेमोक्रेटिक होगा जबकि सबको राइट टू वोट मिला हुआ हो। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट द नेशनल मूवमेंट विच वॉज फॉट
by the Indians, that fight, that struggle was not only to remove the British rule from the country, but that fight was also to establish the democratic rule in the country. ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है वो सबको ही दे दिया, और इनका ये सोचना था कि अगर हम सबको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे देंगे तो उससे क्या होगा कि लोगों का एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट डेवलप होगा, है ना। और जो ट्रेडिशनली लोग कास्ट के बारे में इतना ज़्यादा जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं सोसाइटी में, क्लास को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जेंडर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि मेल को फीमेल से सुपीरियर समझा जाता है, अपर कास्ट लोअर कास्ट का जो चीज़ें होती हैं, रिच पुअर की चीज़ें होती हैं, ये सब खत्म होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर हम सब बराबर हैं, हम सबको राइट टू वोट मिला हुआ है। ये नहीं कि जो रिच है उनको दे दिया गया राइट टू वोट, ये नहीं जो मेल है उनको राइट टू वोट दे दिया गया, ये नहीं जो अपर कास्ट है उनको राइट टू वोट दे दिया गया, नहीं, सबको, चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सबको राइट टू वोट दिया गया। तो इससे हमारे अंदर एक तरह का एक यूनिटी आएगी कि हम सब एक हैं, वी ऑल आर citizens of the country and our aim is to establish a democratic government। ठीक है, तो इस तरह से ये सब कुछ सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे दिया, है ना। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन द इलेक्शन। It's not only कि it does not mean कि we have only right to vote. It also means that each citizen of India have the right to contest the election also. There is also only some criteria like age का criteria होता है और citizenship का criteria होता है। तो हमें सिर्फ right to vote नहीं मिला, बल्कि right to contest election भी मिला। हम कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए हमें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और कम से कम 25 ईयर्स हमारी एज होनी चाहिए। तो इस तरह से ये राइट हमें दिया गया और इससे ही हम इसी राइट को हम एक्सरसाइज करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, है ना। राइट टू वोट को एक्सरसाइज करते हैं और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं सेंटर के लेवल पे, और स्टेट के लेवल पे यही क्या बनते हैं, ये बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अपने एमपी एमएलए का नाम सुना होगा, है ना, एमपी एमएलए। एमपी क्या हुआ, एमपी हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए क्या हुआ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हो गया आपका सेंटर लेवल पे। जो पार्लियामेंट होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट लेवल पे होती है ना। तो इस तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो हमारे बिहाफ में रूल करते हैं। कानून बनाना, जो लॉ मेकिंग का जो काम है वो कौन करते हैं, यही एमपीज एंड एमएलएज करते हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट्री form of government, okay। And now we will see the third feature of the Indian Constitution, and that is separation of power. Now you will have to understand the meaning of separation of power, then the need of separation of power, okay। So the third is सेपरेशन ऑफ पावर, ओके। सो गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन्स होते हैं। कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट होती है वो उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। अब ये 3 ऑर्गन्स कौन से हैं,
गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन है। एक ऑर्गन का नाम हमने क्या लिखा, लेजिस्लेचर, दूसरे ऑर्गन का नाम है एग्जीक्यूटिव, और तीसरे ऑर्गन का नाम है जुडिशियरी। ये 3 जो है वो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स हैं। गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो यही तीनों करते हैं। गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो इन्हीं तीनों ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है दैट इज द बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अभी हमने जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, देन एमपीज एंड एमएलएस। तो ये जो एमपी हम कहें, हमने अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया। दिस रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 2 तरह के होते हैं। सेंटर लेवल पे अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर स्टेट लेवल पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, एक है पार्लियामेंट और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट क्या है और ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। पार्लियामेंट का मतलब हुआ सेंटर के लेवल पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, कॉमन पीपल के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी होती है सेंटर के लेवल पे, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसके पहले हमने फेडरलिज्म पढ़ा था, हमने देखा कि 2 लेवल पे गवर्नमेंट है हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सेंटर लेवल की गवर्नमेंट है वहाँ पर जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। और जो स्टेट के लेवल पे जो लोगों की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन पार्लियामेंट में कौन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं जिन्होंने अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज किया है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया, तो वो बन गए पार्लियामेंट के मेंबर। अब पार्लियामेंट में वो क्या काम करते हैं, पार्लियामेंट में वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो उनका है वो लॉ बनाने का काम होता है। ठीक है, लॉ बनाने के अलावे वो एक और काम करते हैं और वो काम ये करते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर हम बोल रहे हैं वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, लॉ बनाने के अलावा वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल भी करती है। अब लेजिस्लेचर में तो वो हो गए जिनको हमने इलेक्ट किया था। एग्जीक्यूटिव जो है वो एक स्मॉल ग्रुप होता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो एक स्मॉल ग्रुप होता है जो कि इसी लेजिस्लेचर से ही निकलता है। ये एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं उसमें से ज़्यादातर, अगर एक प्रेसिडेंट जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, देन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसमें एक प्रेसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी लेजिस्लेचर से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, वो एक स्मॉल बॉडी। इसके बारे में अभी आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तो हम लोग काफ़ी शॉर्ट में चीज़ों को देख रहे हैं, बस हम फीचर्स देख रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं। यही जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एलाबोरेटली आपको बताया जाएगा तो यू विल एवरीथिंग विल बी क्लियर। अभी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको बस ये समझना है
कि जो लेजिस्लेचर है वो एक लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसमें वो लोग होते हैं जिसके मेंबर जो कि जिनको जनता ने इलेक्ट किया है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, ठीक है। और इसका जो प्राइम फंक्शन है वो लॉ मेकिंग का फंक्शन होता है। अब दूसरा जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक स्मॉलर बॉडी होता है, ठीक है। लेजिस्लेचर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव में उतने मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है, छोटी बॉडी होती है। और ये जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं, दीज मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर एक्चुअली दे एक्चुअली इम्प्लीमेंट द लॉज, ओके। जिन लॉज को लेजिस्लेचर ने बनाया उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और गवर्नमेंट रन करते हैं, एग्जीक्यूटिव, ओके। और इसके बाद हम देखते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी जो है वो क्या करती है, वो अगर कोई जो लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रही है एग्जीक्यूटिव, अगर कोई उस लॉ के अगेंस्ट काम करता है तो उसको पनिश करती है ना। तो जुडिशियरी का जो काम है, इट्स फंक्शन इज टू पनिश द लॉ ब्रेकर। These are the जिसको हम कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस ही हम बता रहे हैं। इसके अलावे भी कुछ बहुत ही और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इन सारे ऑर्गन्स को, जिसको कि हम लोग जब अलग से डिस्कस करेंगे ये सारे ऑर्गन्स को तो आपको और भी अच्छी से बताई जाएंगी। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशियरी और लॉ को ब्रेक करने वालों को पनिश करती है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिस्ट्रीब्यूट किया है इन तीनों ऑर्गन के बीच में। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कोई भी ऑर्गन, सिंगल ऑर्गन जो है वो अपना ही सिर्फ काम करे, वो दूसरे ऑर्गन के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर ना करे, वो वही काम करे जो कि उसको दिया गया है। इससे क्या होगा? मिसयूज नहीं होगा पावर का। अगर जुडिशरी ही लॉ भी बना रही है, इम्प्लीमेंट भी कर रही है और जो लॉ को नहीं मान रहे उनको पनिश भी कर रही है, तो इस तरह में मिसयूज ऑफ पावर हो जाएगा। तो मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि जो हर ऑर्गन है वो उनका अपना अपना डिफाइंड पावर्स है। कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के जुरिस्डिक्शन में, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में किसी भी तरह से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से हर ऑर्गन जो है वो दूसरे बाकी के दो ऑर्गन पर चेक करता है, कंट्रोल करता है। और इस तरह से जो ये कंट्रोल करता है उससे क्या होता है कि वहां पर पावर बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक करता है। चेक करना मतलब उसके पावर पे उसको देखता रहता है कि वो अपने पावर को मिसयूज तो नहीं कर रही है। अगर करती है तो फिर उस पर वो रोक लगाता है। इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव है वो देखेगी कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है वो अपने जुरिस्डिक्शन से आगे नहीं बढ़ जाए, तो वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी को चेक करती है। इसी तरह से जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को चेक करती है कि वो वही काम करे जो काम इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो दिस इज कॉल्ड चेक। एक ऑर्गन जो है वो बाकी के दो ऑर्गन को चेक कर रही है, और इस चेक करने के कारण क्या हो रहा है कि पावर जो है वो बैलेंस में बना हुआ है। कोई भी ऑर्गन पावर का मिसयूज नहीं कर पा रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पावर, what happened that the function of each organ is defined and all the
organs are checking the powers of other organs. In this way, balance is maintained. So this is called check and balance. Okay, this is called check and balance. So we will continue other features of Indian Constitution in the next class.